A very good morning in Jai Hind students. Welcome to the online class. Well, continuing with chapter number 2, that is Principles of Management. The topic which we are discussing is Fayol's Principles of Management. And Fayol has given 14 principles of management. Out of those 14, we have already discussed 8 principles of management. And today we are going to discuss the 9th principle of management given by Henry Fayol, which is scalar chain. Okay. So dear students, if you do remember, the last principle which we have discussed in the last lecture was about the centralization and decentralization. What? See, centralization all about is concentration of authority at top level in organization. इसमें जो भी अथॉरिटी होती है, जो भी पावर होती है, वो सब टॉप लेवल के पास होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. एज it is already clear to you that in any of the organization there are 3 level. Top level होता है, middle level होता है, and then operational level. Right? So यहाँ पर if we are talking about what is centralization, तो Henry Fayol observed this while working in any of organization that centralization must be there. It means क्या होता क्या है कंपनीज में, जो अथॉरिटी होती है, जो मेन पावर होती है, वो टॉप लेवल के पास होती है, होनी भी चाहिए. ठीक है. उसके हमने बेनिफिट्स पढ़े, वायलेशन पढ़ा कि अगर नहीं यूज़ करते हैं तो क्या होता है. एंड देन व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन. सी, कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें सिर्फ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपने बिहाफ पे सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए वो टॉप मैनेजमेंट यूज़ टू डू द डिस्पर्स अथॉरिटीज़ टू द लोअर लेवल. वो अपना काम बांट देते हैं और वो उसको डिफरेंट मैनेजर्स को डिस्पर्स कर देते हैं. अथॉरिटी देते हैं मतलब उनको पावर देते हैं, उनके पास राइट होता है टू डू समथिंग. Okay, right? Now come to the next principle, and that is scalar chain, which is a very good principle and an interesting one too. So let's come to the book, dear students. Right here, scalar chain. If we are learning here about scalar chain, what scalar chain is all about, it denotes the line of authority from the chief executive to the lower level in the organization. See, कहीं पर भी हमने बात किया था, जैसे आपके स्कूल की अगर हम बात करते हैं, if I am talking about your school, so in your school as well, what there is a hierarchy which is to be followed. As principal sir is there, then vice principal ma'am, then coordinators, then HODs and teacher, right? So there is a proper hierarchy in your school also. So likewise हर organization में बेटा एक line of authority होती है जो कि from top level, that is chief executive, से लेकर lowest level तक जाती है. All right? इस चेन में it is the chain for the movement of formal authority and communication from top to bottom. राइट. कोई भी फॉर्मल बात हो, कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन हो, वो इसके ज़रिए शेयर की जाती है. ओके, राइट. सो किसी भी तरह की फॉर्मल अथॉरिटी, किसी भी तरह की फॉर्मल कम्युनिकेशन वो शेयर की जाती है इस प्रॉपर लाइन ऑफ अथॉरिटी के ज़रिए. What Fayol suggested that this chain should be followed by the managers and subordinates. ये chain follow करनी होती है managers और subordinates को. ठीक है, किसी भी हालत पे, किसी भी emergency पे ये violate नहीं होनी चाहिए. ओके, क्योंकि जो स्केलर चेन होती है वो रिकॉग्नाइज करती है नेसेसिटी ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन. हर चीज़ फॉर्मल तरीके से होती है तो बहुत सही रहता है. अच्छा, आपने भी अपने स्कूल में देखा होगा कि sometimes PNs came to the teachers, the coordinators, and they asked to do a signature. They asked to put the signature somewhere. वो कहीं पर भी हो सकता है. किसी भी फॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए जब मैसेज आता है, कोई फॉर्मल इन्फॉर्मेशन आती है, तो the PNs came to the teachers, the coordinators and everybody, like the people who are associated with, और उनसे साइन मांगते हैं उस पर, बिकॉज वो फॉर्मली उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन हम तक शेयर कर दिया है. ठीक है. सो इस लाइक वाइज दिस स्केलर चेन हैज़ सम फॉलोइंग एडवांटेजेस.
It has some advantages. What is that? There will be unity of command in the organization and there will be no confusion of dual order. Every member will know under whom is he working and whose order he is to obey. बेटा देखो स्केलर चेन में क्या होता है, अभी आई हैव ऑलरेडी मेड इट फॉर यू, दिस इज़ दी स्केलर चेन जो मैं भी आपको समझाऊंगी, बट उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे. एंड व्हाट इज़ दैट, अगर हम स्केलर चेन को फॉलो अप करते हैं जिसमें हम प्रॉपर हायरार्की को फॉलो करते हैं कि प्रिंसिपल has some idea and he float that idea to the vice principal ma'am implement that idea with the help of coordinators, HODs and then teachers in your school. अगर हम बात करते हैं तो इसी तरह हमें पता होता है there will be unity of command, और unity of command हम already पढ़ चुके हैं. This is a principle. Unity of command means every subordinate should have one superior only. ठीक है, एक ही बॉस होना चाहिए. हमें पता चलना चाहिए अगर इससे भी इंफॉर्मेशन आ गई, इधर से भी इंफॉर्मेशन आ गई तो कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, हर एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए वो किसके अंडर काम कर रहा है और उसको किसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है. ये कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी, एवरीवेयर इट इज मस्ट. ओके, देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विच इज़ एसेंशियल टू ऑर्गेनाइजिंग इज फैसिलिटेटेड. अगर हम एक प्रॉपर चेन फॉलो कर रहे हैं तो उसमें डेलीगेट करेंगे अथॉरिटी को. जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रिंसिपल सर पास ऑन द इन्फॉर्मेशन टू वाइस प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम टू द कोऑर्डिनेटर. इसी तरह किसी कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में बेटा CEOs जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो मैनेजर्स को बताता है, मैनेजर्स सुपरवाइजर्स को बताते हैं, सुपरवाइजर्स अपने अंडर काम करने वाले लेबर्स को बताते हैं. राइट, एंड द स्केलर चेन एस्टेब्लिश द चैनल थ्रू विच कम्युनिकेशन विल पास. अच्छा, एक किसी भी कंपनी में एक जरिया होता है ना कम्युनिकेशन का, तो वो जरिया होना चाहिए. दैट इज स्केलर चेन. ठीक है, अब इसके इतने सारे फ़ायदे हैं तो इसका कुछ नुकसान भी होगा, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे. व्हाट, अगर सी आप अभी जस्ट आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल कि हियर आई एम टेलिंग यू लाइक आपने principal of the school, then vice principal ma'am, then coordinators, right, then comes HODs, then comes teachers. अगर कोई मैसेज प्रिंसिपल सर को लेट्स सपोज टीचर्स तक फ्लॉट करना है तो उन्हें प्रॉपर ये हायरार्की फॉलो करनी है. ठीक है, जहाँ पर प्रिंसिपल सर फर्स्ट कन्वे द मैसेज टू वाइस प्रिंसिपल मैम, देन वाइस प्रिंसिपल मैम कन्वेइंग द मैसेजेस टू द कोऑर्डिनेटर, देन कोऑर्डिनेटर्स टू द HODs एंड देन HOD पास दोज मैसेजेस टू द टीचर्स. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया. सो दिस communication takes too much time, right, as the order comes from the top level to the bottom in this chain. It should not be rigid. फिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर फिक्स होगी तो कोई भी मैसेज अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में, बेटा ये तो एक छोटा सा सिस्टम हो गया. किसी हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं जिसमें दो स्कूल्स भी छोटा सिस्टम नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप में. लेकिन अगर हम किसी ऐसी जगह बात करते हैं जहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एसोसिएटेड होते हैं हमसे, तो वहाँ पर स्केलर चेन शुड नॉट बी रिजिड. इट शुड नॉट बी रिजिड, फिक्स्ड नहीं होनी चाहिए कि आपको इसी तरह से एक सिस्टम फॉलो अप करना है. ठीक है, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि बस टाइम बहुत कम होता है तो ऑर्डर्स यहाँ से टीचर्स के पास डायरेक्टली अगर पास ऑन हो जाएं, लेट्स सपोज, समटाइम्स इट कुड हैपन. इट शुड नॉट बी रिजिड, फिक्स नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि कंपनी में अगर आप बात करते हो तो कंपनी में अपने आप में डिपार्टमेंट्स होते हैं. लाइक हम कई बार पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, आप सेल्स में इसमें मार्केटिंग भी ले लोगे बेटा डिपार्टमेंट, एंड देन HR डिपार्टमेंट. ठीक है, अब हम इन डिपार्टमेंट से बात करें, इनके अंडर बहुत सारे पीपल, इंडिविजुअल्स काम करते हैं. ठीक है, ऊपर से टॉप लेवल है, देन मिडिल लेवल एंड देन ऑपरेशनल लेवल. अब डिपार्टमेंट्स इतने सारे एसोसिएटेड हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन पास होने के लिए इन्हें प्रॉपर स्केलर चेन फॉलो अप करनी है. बट कभी इमरजेंसी के टाइम पर ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी रिजिड, राइट. सो इसीलिए ये एक गैंग प्लान बनाया गया. अब आप इस पूरे प्रोसेस को समझोगे.
Okay, so Fayol called it the gang plan, right? Which you can see here, this dotted line is the gang plan. Okay, it allows direct link between two employees of different department. देखो ये दो डिपार्टमेंट है यहाँ पर, इन दोनों डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को अगर बात करना है ना तो किस तरह से करते हैं, डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए, देन ए टू सी, इस तरह से. अब फेयोल ने देखा कि इस तरह से अगर हम ये प्रोसीजर कंपनी में अप्लाई करते हैं और किसी इमरजेंसी के टाइम पर बहुत कम हमारे पास टाइम होता है, तो गैंग प्लान मस्ट बी देयर, जिसमें इट अलाउज टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, टू सेपरेट डिपार्टमेंट्स टू हैव अ कॉन्वर्जेशन. ठीक है, सो इट फैसिलिटेट्स क्विक कम्युनिकेशन. इट वुड लीड टू बेटर कोऑर्डिनेशन बाय रिमूविंग दी हर्डल्स इन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ ऑफ टू डिफरेंट डिपार्टमेंट. ऐसा क्यों? आप सोचोगे अच्छा ठीक है दोनों डिपार्टमेंट में बात हो जानी चाहिए. दोनों डिपार्टमेंट में मान लो हमेशा ही ऐसा होता है कि दोनों डिपार्टमेंट्स में बात हो जाती हैं, तो बाकी लोगों तक मैसेज कन्वे कौन करेगा? हु विल कन्वे दी मैसेजेस टू दी रेस्ट ऑफ दी अदर पीपल हु आर एसोसिएटेड विद दीज टू डिपार्टमेंट? तो एक्चुअली सिस्टम तो यही होना चाहिए कि डी के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई आइडिया, कोई प्लान है, तो वो सी से डिस्कस करेगा, सी बी से, बी ए से, देन ए टू एस. ठीक है, ये किस लिए? क्योंकि इनसे जुड़े हुए जितने भी इनके डिपार्टमेंट के लोग हैं ये सब मिलकर टीम वर्क करेंगे, तब कोई काम पूरा होता है, तब ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं. देन ये एक डिपार्टमेंट से कुछ नहीं होने वाला. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इंटरलिंक्ड है सेल्स डिपार्टमेंट से, सेल्स डिपार्टमेंट फाइनेंस से, फाइनेंस एचआर से. इसका भी मैं आई कैन गिव यू एग्जांपल. अगर लेट्स सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी रिक्रूटमेंट हो गया है, वैकेंसी है, कौन हु विल रिक्रूट द एम्प्लॉय, हु विल रिक्रूट द इंडिविजुअल? एचआर डिपार्टमेंट. सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट पूरी की पूरी रिपोर्ट अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट को नहीं देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना पूरा बजट कैसे प्लान करेगा? ठीक है, सो एक्चुअली दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. सो कम टू दिस पॉइंट. इसीलिए हर डिपार्टमेंट के लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि what is going on in the company. Let's suppose coordinators have got a message here in your school that tomorrow will be holiday, kind of. ठीक है, and they did not, the coordinators forgot, or for somehow any reason they forgot to convey this message to the teachers. अगर टीचर्स तक नहीं आएगा तो आप जो बच्चे एसोसिएटेड हैं सब बच्चों तक कैसे ये मैसेज पहुँचेगा? एंड समटाइम्स इस हैपन कि कोऑर्डिनेटर्स उसको डायरेक्ट आपके पास ईआरपी के थ्रू मैसेजेस पहुंचा देते हैं. तो एक मैसेज वो हो गया जिसमें यहाँ पर कोऑर्डिनेटर्स दे आर नॉट रिजिड, दे आर नॉट फिक्स्ड हियर और विद दिस रूल, और यहाँ पर डायरेक्ट बच्चों के पास तक मैसेज पहुँच गया, आप तक मैसेज पहुँच जाता है दैट टुमारो विल बी हॉलीडे काइंड ऑफ. ठीक है, तो इससे हमारा टाइम कंज्यूम जो होता है, जो टाइम होता है वो बच गया. और साथ ही में अगर कोऑर्डिनेटर्स ये टीचर्स तक फ्लॉट नहीं करेंगे मैसेजेस, तो हाउ कम टीचर वुड बी एबल टू नो कि टुमारो विल बी हॉलीडे? मतलब देयर इज़ अ प्रॉपर सिस्टम ना, हर एक तक इन्फॉर्मेशन का पहुंचना बेटा बहुत ज़रूरी है. ठीक है, इसीलिए दीज आर टू सेपरेट डिपार्टमेंट्स. ऑल राइट, जैसे देयर आर टू लेडर्स ऑफ अथॉरिटी, एक ये डिपार्टमेंट है, एक ये डिपार्टमेंट है. वन फ्रॉम एस टू ई, अनदर फ्रॉम एस टू पी. ओके, so if D wants to communicate with O here, right, under the scalar chain, if D wants to talk to O, if D want to communicate any information to O, ठीक है, so the information will first flow upward, that is from D to S through C, B, A, right, and then S to A through L, M, N. Okay, this communication will normally be a time consuming process, but अब आप कहो कि नहीं मैम ये तो दोनों डिपार्टमेंट में डायरेक्ट भी बात हो सकती हैं, बट फिर इन लोगों को कैसे पता चलेगा what is going on in the system, what is going on in the organization, what is the new plan, what are the new ideas, right? Okay, so D and O should be allowed to exchange information directly by using gang plan. बट बिल्कुल कोई एमरजेंसी है तब वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इसे, एमरजेंसी के टाइम पर. ठीक है, इट शुड नॉट बी अ नॉर्मल प्रैक्टिस एट इट अंडरमाइंस द एस्टेब्लिश्ड लाइन्स ऑफ अथॉरिटी, जो कि किसी भी कंपनी को फॉलो अप करनी होती हैं. बेटा अब आई होप आपको ये क्लियर होगा कि डायरेक्ट ये लोग तो बात कर सकते हैं डिपार्टमेंट में, इसने इसको फ़ोन मिलाया और बोल दिया भाई ये काम होना है,
बट काम तो ये लोग सब लोग मिलकर करेंगे ना, ये दो ही लोग सिर्फ इससे एसोसिएटेड नहीं है, इन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। इस सिस्टम को कहते हैं स्केलर चेन। बट स्केलर चेन कभी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए गैंग प्लान फेयोल ने बनाया, जिसमें डी डायरेक्ट ओ से बात कर सकता है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली, राइट। अब इसके भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। व्हाट आर दोज पॉजिटिव इफेक्ट्स? सी, द वेरी फर्स्ट वन इज स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन चलता है, सबको पता चल जाता है व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंपनी, व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। ओके, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर होती हैं। इसको पता है कि आई एम कन्वेइंग द मैसेज टू हिम, आई एम कन्वे द मैसेज टू बी, आई एम कन्वेइंग द मैसेज टू ए से हमें एस को बताना है। जो भी हेड है, जिसके पास भी अथॉरिटी है, जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, सबको पता होता है कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डी को सी को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है, सी को बी को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है, बी को ए को, और ए को अपने हेड एस को। एस फिर इस कम्युनिकेशन को फ्लोट करेगा टू ओ, बट थ्रू द प्रॉपर चैनल, राइट। देन यूनिटी ऑफ कमांड इन द ऑर्गेनाइजेशन। यस, कमांड रहेगा, सबको पता है भाई देयर मस्ट बी वन सुपीरियर, दैट इज सी को, डी को पता है कि मुझे सी को मैसेज फ्लॉट करना है, सी को पता है कुछ भी होगा यहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी ही आएगी, बी को पता है कुछ भी होगा आई गॉट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सी, ए को पता है गॉट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बी ओनली। सो यूनिटी ऑफ कमांड इज ऑल्सो फॉलोइंग हियर, राइट। Is that clear? If we are not following this scalar chain or the gang plan in any of the organization, what could be the adverse effect? The very first one is communication gap in the organization. As I have told you, dear students, that D और O डायरेक्ट बात कर सकते हैं, बट ये अकेले कुछ काम नहीं कर सकते। पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल एक कैटेगरी है जो कि एसोसिएटेड है इनसे। दे हैव टू डू टीम वर्क, और टीम वर्क के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन का फ्लॉट होना बहुत ज़रूरी है। इन सबको पता होना चाहिए व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ आवर अनदर स्टेप, राइट। देन लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। इन्होंने डायरेक्ट मैसेज इनको फ्लॉट किया, इनको कुछ पता ही नहीं, दे ऑल आर अननोन। सी डी से कंप्लेन करेगा कि वाई यू डिडंट पास ऑन द इंफॉर्मेशन, B complain to C that why you didn't pass on the information. So lack of clarity of authority relationship, responsibility relationship is there. ठीक है, if we are not following the scalar chain. All right, hope it is clear to all. Now comes the next principle, that is principle number 10, that is order. So it is the most interesting one. What is happening in order actually? See, Fayol said that there should be a place for everything and everyone. If we are talking about order, then Fayol said that there should be a place for everything and everyone. अब इस चीज़ को समझो। अगर हम बात करते हैं, दिस इज़ द 10th प्रिंसिपल, दैट इज़ ऑर्डर। सुनने में बहुत छोटा वर्ड लग रहा है, बट सी, आई ऑलवेज कीप दिस नोटबुक अलॉन्ग विद मी, आई ऑलवेज कीप दिस ब्लैक पेन अलॉन्ग विद मी। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के बाद मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल माई नोट्स इन दिस रजिस्टर, राइट। एंड व्हाट हैपन, आई जस्ट शट द फोन, और उसके बाद मैंने आई कीप दिस रजिस्टर, कीप दिस नोटबुक एंड दिस पेन समवेयर एल्स इन अनदर रूम। ठीक है, नेक्स्ट डे आई केम टू दिस टेबल ओनली, मुझे यहीं पर आना है आपको पढ़ाने के लिए, एंड आई हैव टू फाइंड आउट दिस नोटबुक एंड दी पेन। अगर मैं इसकी प्रॉपर प्लेस डिसाइड कर देती हूँ कि आई need to keep this notebook and this pen here on this study table only, जहाँ पर बैठकर मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो ये कभी मिसप्लेस नहीं होगी, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। Are you getting this point? So order says that there should be a place for everything and everyone. आपको चीज़ समझ में आई? मैम ने आपको ये पढ़ाया, ये नोटबुक, आई प्लेस दिस नोटबुक समवेयर एल्स, आई कीप दिस पेन समवेयर एल्स। अगले दिन मैं जब आती हूँ लेक्चर पढ़ाने के लिए, आपको देने के लिए, सो आई नीड टू फाइंड आउट माई नोटबुक जिसमें मैं आपके नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, एंड दिस पेन,
विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर मी एक्चुअली. ओके, सो इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है. लेट्स सपोज हम किसी फैक्ट्री की बात करते हैं, तो किसी भी फैक्ट्री में अगर कोई प्लेस नहीं है फिक्स टूल के लिए, फैक्ट्री की बात करते हैं अगर हम, देयर इज़ नो प्लेस of keeping tools, there is no place of keeping tools. ठीक है बेटा, अगर किसी भी फैक्ट्री में हम बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, इफ देयर इज़ नो प्लेस ऑफ कीपिंग टूल्स, तो वर्कर्स क्या करेंगे, दे वुड कीप द टूल एट डिफरेंट प्लेसेस, कहीं पर भी रख देंगे और फिर उसको भूल जाएंगे. उससे क्या होगा, नेक्स्ट डे दे हैव टू कम बैक और उनका टाइम वेस्ट होगा टूल्स को फाइंड आउट करने के लिए जब भी उनको ज़रूरत होगी. ठीक है, अब जैसे कार के मैकेनिक को आपने कई बार देखा होगा, तो कार मैकेनिक क्या करता है, अपने साथ एक पूरी किट लेकर चलता है, और वो किट जैसे वो कार के नीचे पहुंचा वो किट अपने साथ रखता है. लेट्स सपोज वो किट कहीं भी रख दे और सामान कहीं भी रख के भूल जाए, कार के नीचे तो चला गया है बट उसमें जो चीज़ें उसको, जो टूल्स उसको चाहिए वो टूल्स उसमें है ही नहीं. सो फॉर प्रॉपर ऑर्डर इन ईच डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंटल हेड होता है, द डिपार्टमेंटल हेड, ये डिपार्टमेंटल हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट द डिपार्टमेंट हेड शुड अलॉट स्पेसिफिक वर्क स्टेशन या टूल्स टू ईच वर्कर, ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो. हाँ, इसी तरह सीनियर्स के लिए भी एक पर्टिकुलर, देखो आपके स्कूल में अगर आपको कोऑर्डिनेटर से मिलना होता है तो आप क्या करते हो, आप कोऑर्डिनेटर्स, इफ़ यू वांटेड टू मीट द कोऑर्डिनेटर्स इन योर स्कूल, सो आप कहाँ जाओगे, कोऑर्डिनेटर्स रूम. ठीक है, इफ़ यू वांटेड टू मीट द टीचर्स इन योर स्कूल, सो वेयर विल यू अप्रोच द टीचर्स, वेयर कैन यू अप्रोच द टीचर्स, इन स्टाफ रूम. आपको पता है कि there are separate staff room for English, for Hindi, for math and science. If you want to meet your English teacher, तो you must visit English staff room. ठीक है, staff room for the English teachers, you must visit there. ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है बेटा, अगर आपको मतलब देयर शुड बी स्पेसिफिक प्लेस और रूम फॉर सीनियर्स, जहाँ पर कंटैक्ट कर सकें जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं ज़रूरत के टाइम पर. नहीं तो अपने सीनियर्स को ढूंढते रह जाओगे. अगर आपको कुछ कोऑर्डिनेटर से बात करनी होती है, आपको पता है देयर इज़ अ प्रॉपर रूम. ठीक है, इफ़ यू वांटेड टू मीट साधना मैम, सो देयर इज़ अ प्रॉपर रूम ओवर देयर, तो आपको पता है हमें वहाँ पर डायरेक्टली जाना है. नहीं तो आप सिर्फ पूछने में लगे रहोगे, मैम आप डू यू नो वेयर वी कुड मीट साधना मैम, वेयर कुड मीट द कोऑर्डिनेटर्स, इज़ इट सो. अच्छा, सोचना बैठ के चीज़ कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है. आप परेशान हो गए, आप घूमोगे, ढूंढोगे, किसी टीचर को चाहिए आपको कि इंग्लिश की टीचर हैं, आपको पता है कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में मैम मिल ही जाएंगी, आपके लिए काम आसान हो जाता है. इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी अगर हम बात करते हैं, तो देयर शुड ऑल्सो बी स्पेसिफिक शेल्स और स्टोर रूम्स फॉर स्टोरिंग रॉ मटीरियल. जैसे क्या रखना होता है कंपनीज़ में, रॉ मटीरियल्स, राइट, finished goods. Okay, so if there is a fixed place for everything and it is kept there, अगर सबके लिए प्रॉपर फिक्स्ड प्लेस होगी और उसको वहीं रखा जाएगा, तो किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन काम में नहीं होगा. आप समझ में आया. व्हाट इज़ ऑल अबाउट ऑर्डर इज़ देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन. जैसे आपका पेंसिल बॉक्स, इफ़ यू आर कैरिंग अ पेंसिल बॉक्स, आपको पता है यू कीप योर पेन, यू कीप एन इरेजर, right, everything in that pencil box, and you keep that pencil box inside your bag every day. तो आपको पता है you don't need to search for anything. आप if you need a pen, so you just take out your pencil box, you can get it your pen from there. Okay, तो likewise हर जगह अगर फिक्स हो, चाहे वो रॉ मटेरियल के हो, फिनिश गुड्स के लिए हो, तो इजीली अप्रोचेबल हो जाता है. तो देयर आर सम पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस. What are the positive effects? Effective utilization of human and physical resources. Obviously जब हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा ह्यूमन का, तो उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाएगा, और रिसोर्सेज का भी, टूल्स पता होंगे हमें कहाँ पर रखे हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा. राइट, नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ पीपल, टूल या मटीरियल्स, और उनका अच्छे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन होगा. स्मूथ और सिस्टमेटिक वर्किंग होगा ऑर्गेनाइजेशन में. ऑब्वियसली जब व्हेन वी आर नॉट लुकिंग हियर एंड देयर फॉर our staff, we are very much aware where we have kept the things, तो सब कुछ चीज़ बहुत स्मूथ और सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगी. अब इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होंगे. व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट? वेस्टफुल मूवमेंट ऑफ टूल्स एंड मटीरियल्स.
अगर हम इसे फॉलो नहीं करते हैं तो कोई भी टूल कहीं पर भी रखकर चला जाएगा, मटेरियल्स को कहीं भी रखेगा, जिसकी वजह से लॉस कंपनी को होगा। डिफ़िकल्टी इन कॉन्टैक्टिंग पीपल इन केस ऑफ नीड, अगर आपको नहीं पता आपके मैनेजर कहाँ पर बैठते हैं, अगर आपको नहीं पता जिनसे आपको मिलना है वो कहाँ पर, उनकी कोई प्लेस नहीं होगी, सो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द इंडिविजुअल्स टू कॉन्टैक्ट द पीपल इन केस ऑफ एमरजेंसी और नीड। ऑब्वियसली वेस्टेज होगा टाइम का इन सर्च ऑफ मैन, मटीरियल एंड टूल्स, क्योंकि देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। एवरीथिंग में मटीरियल और टूल्स आ गया, एवरीवन में मैन आ गया। ओके, ऑल राइट, so we are done with two principles, that is scalar chain and order. Now comes the another principle, that is equity. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा पहले. What is all about equity? See, the employee should be treated with kindness and equity if devotion and loyalty are expected of them. अगर हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करें, वो अपने काम को पूरी लॉयल्टी के साथ करें, तो हमें भी अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करना चाहिए विद काइंडनेस एंड इक्विटी. बराबर का समझना चाहिए. वी शुड बी काइंड टू देम, राइट. जो मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इट इज स्पेशली फॉर दैम दैट दे शुड नॉट बी इम्पार्शियल, दे शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेट विद रिगार्ड टू सेक्स, कास्ट, रिलीजन एट्सेट्रा, राइट. हर सबऑर्डिनेट जो आपके साथ काम करता है वो फेयरली ट्रीट होना चाहिए, चाहे वो रिवार्ड हो चाहे पनिशमेंट हो. अगर आप किसी को अप्रेज कर रहे हो तो फेयरली उसके काम के लिए आप उसको अप्रिशिएट करोगे, और अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको पनिश भी करोगे, बट इक्विटी मस्ट बी देयर. मैनेजर्स शुड नॉट गिव अनड्यू फेवर्स टू सम एंड नेग्लेक्ट अदर्स. ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को तो अनड्यू फेवर कर रहे हैं और किसी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं कंपनी में, जबकि काम सभी लोग कर रहे हैं. ठीक है. वर्क परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब शुड बी पेड रेम्यूनरेशन एट द सेम वेज रेट. इसे समझो. इसका आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल हियर दैट देयर इज अ बॉस, राइट. बॉस के अंदर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, दो कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते हैं, बट वन कंप्यूटर ऑपरेटर इज मेल एंड अनदर कंप्यूटर ऑपरेटर इज फीमेल. बेटा दोनों का डेजिग्नेशन बिल्कुल सेम है, बट the male computer operator is getting 20,000 per month and the female computer operator is getting 15,000 per month. So it is equitable. Is it equitable? No, definitely not. Just because she is a woman and she is getting 15,000, वो बिल्कुल उतना ही काम कर रही है, उसके जैसा ही वर्क कर रही है, उसकी सेम डेजिग्नेशन है उसका. So it should not be there. Because if this principle is of equity is followed ना, then the worker will feel happy, क्योंकि उनको fairly treat किया जा रहा है और वो motivate भी होते हैं, right? Okay. So there are some definitely positive effects of equity, and what is that? Employees are satisfied and their morale is higher. अगर सबको ट्रीट किया जाएगा अच्छे से विदाउट एनी कास्ट, रिलीजन, एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सो व्हाट वुड हैपन? एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होंगे. देयर आर कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन सुपरवाइजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स. देखो, अगर सुपरवाइज़र अपने सबऑर्डिनेट के प्रति इम्पार्शियल होगा, सो सबऑर्डिनेट्स भी कभी अपने सुपरवाइज़र को फेवर नहीं करेंगे. वो हमेशा एक एनवायरनमेंट ख़राब ही रहेगा कंपनी का. ठीक है. अच्छे रिलेशंस नहीं बन पाएंगे. एंड इफ़ द सुपरवाइज़र, द मैनेजर इज़ ट्रीटिंग देम फेयरली आइदर इन द मैटर ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट, तो सबऑर्डिनेट्स और सुपरवाइजर्स के बीच में ऑटोमेटिकली रिलेशंस अच्छे रहेंगे. एंड इफ वी आर नॉट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो येस, एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड रहेंगे. अनहेल्दी रिलेशनशिप रह सकते हैं बिटवीन सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि उनको लगेगा यार ये हमें ट्रीट ही नहीं कर रहे अच्छे से. ओके. बिकॉज हम दोनों की डेजिग्नेशन सेम है, इवन देन आई एम गेटिंग 15,000 एंड ही इज़ गेटिंग 20,000, सो अपने आप ही मॉरल डाउन हो जाता है. एग्रीव्ड एम्प्लॉयज़ में लीव द ऑर्गेनाइजेशन. गुस्सा हो सकते हैं, ग्रीव्ड, राइट, गुस्सा हो सकते हैं एम्प्लॉयज़ और इस बात पर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ सकते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का काम बीच में रुक सकता है, इफेक्ट कर सकता है द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके. So dear students, that's all for today, as we are done with 3 principles of management, that is scalar chain, and then order, which was all about that there should be a place for everything and everyone.
ठीक है, एवरीथिंग में कुछ भी चीज़ आ गई, एवरीवन में कोई पर्सन आ गया, ठीक है. देन कम्स इक्विटी, एवरीबडी शुड नॉट discriminate, right? And everybody should get a fair treatment in matter of reward or punishment. ठीक है. Now in the next lecture we will discuss the next principle, that is stability of personnel. By the time you all are supposed to complete your notes up to here. Thank you so much. Have a good day.